رات کے اس پہر وہ پیارا سا معصوم بکری کا بچہ بری طرح سے آوازیں نکال رہا تھا، جس وجہ سے میری نیند بھی اڑ چکی تھی۔ میں بستر پر کروٹیں بدل رہی تھی، دل میں عجیب سی بے چینی اور خوف کی کیفیت تھی۔ میں سوچنے لگی، نہ جانے سے کیا تکلیف ہے، شاید وہ بھوکا ہے یا کسی چیز سے ڈر گیا ہے۔ میں نے 1-2 بار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن پھر اماں کا خیال آیا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر اماں کی نیند اس آواز سے ٹوٹ گئی تو وہ مجھے بہت ڈانٹیں گی اور کہیں گی کہ یہ کون سی مصیبت گھر لائی ہے جس نے ہماری راتوں کی نیندیں تک حرام کر دی ہیں۔ میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانکنے کی کوشش کی۔ چاند کی مدھم روشنی میں نے بکری کے بچے کو دیکھا جو ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا اور مسلسل ممیا رہا تھا۔ اس کے آس پاس کچھ حرکت محسوس ہوئی، لیکن میں یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں باہر جا کر دیکھوں تو کیا بہتر ہوگا۔ میں نے اپنے قدموں کو آہستہ آہستہ دبے قدموں سے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھایا۔ دروازہ کھولتے وقت میں نے پوری کوشش کی کہ کوئی آواز نہ ہو۔ رات کی خاموشی میں ہر چھوٹی سی آواز بھی بہت بلند معلوم ہوتی تھی۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا میرے چہرے سے ٹکرایا۔ دل میں خوف اور تجسس دونوں تھے۔ میں نے آہستہ آہستہ صحن کی طرف قدم بڑھائے۔ ہر قدم کے ساتھ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بکری کے بچے کے قریب پہنچتے ہی میں نے دیکھا کہ وہ کسی چیز سے ڈر کر سمٹ گیا تھا۔ قریب جا کر میں نے محسوس کیا کہ صحن کے کونے میں کچھ عجیب سی حرکت ہو رہی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں کو تھوڑا اور زور سے کھولا تاکہ اندھیرے میں کچھ صاف دکھائی دے، لیکن ابھی کچھ واضح نہیں ہو رہا تھا۔ میری سانسیں تیز ہو گئیں اور میں نے سوچا کہ مجھے واپس پلٹ جانا چاہیے یا اس راز کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ میں خود بھی رات کے اس پہر ہر چیز سے خوف کھا رہی تھی۔ میں نے آہستگی سے ایک چادر اٹھائی اور بکری کے بچے کے اوپر ڈال دی تاکہ اسے سردی نہ لگے۔ میری چادر ڈالتے ہی اس نے ایک گہری نگاہ مجھ پر ڈالی، جیسے وہ میرا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو لیکن زبان سے کچھ کہہ نہ پا رہا ہو۔ مجھے اس کی نگاہوں میں ایک گہری محبت اور احسان مندی محسوس ہوئی، جیسے وہ میری موجودگی کو سمجھ رہا ہے۔ میں نے اسے پیار سے تھپتھپایا اور اس کے نرم جسم پر ہاتھ پھیرتے ہوئے محسوس کیا کہ وہ تھوڑا سا پرسکون ہو رہا ہے۔ میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی اور سکون کی لہر دوڑ گئی۔ مجھے ایسے لگا جیسے ہم دونوں کے درمیان ایک نادیدہ رشتہ بن گیا ہو، ایک ایسا رشتہ جو صرف سمجھا جا سکتا ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ لمحہ میرے لیے بہت خاص تھا۔ بکری کے بچے کی معصومیت اور بے بسی نے میرے دل کو پگھلا دیا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوچا کہ کیا وہ واقعی میری موجودگی کو محسوس کر رہا ہے؟ کیا اسے میری طرح کی سوچیں آتی ہیں؟ ان سوالات نے میرے ذہن میں ہلچل مچا دی۔ میں کچھ دیر اور وہاں بیٹھی رہی، اس کے ساتھ اس کے ننھے دل کو تسلی دیتے ہوئے۔ جب میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو بکری کے بچے نے ایک ہلکی سی آواز میں ممیانا شروع کر دیا، جیسے وہ مجھے اپنے پاس روکنا چاہ رہا ہو۔ میں نے ایک بار پھر اسے پیار سے تھپتھپایا اور یقین دلانے کی کوشش کی کہ میں یہاں ہی ہوں، کہیں نہیں جا رہی۔ لیکن اب مجھے صحن کے اس کونے کی طرف بھی دیکھنا تھا جہاں سے عجیب سی حرکت محسوس ہو رہی تھی۔ پھر مجھے محسوس ہوا کہ شاید وہ اس ٹھٹھرتی سردی میں اس اندھیرے سے خوفزدہ ہو رہا ہے۔ میں نے جلدی سے ایک دیا اٹھایا اور اس کے قریب ہی جلا دیا۔ دیا جلاتے ہی اس کے ارد گرد کی تاریکی کچھ کم ہو گئی اور ایک نرم روشنی نے ماحول کو تھوڑا سا گرم کر دیا۔ بکری کے بچے کی آنکھوں میں تھوڑا سا سکون نظر آیا، جیسے وہ اس روشنی میں اپنے آپ کو محفوظ محسوس کر رہا ہو۔ میرے دل میں ایک عجیب سی محبت اور تحفظ کا جذبہ پیدا ہوا۔ میں نے دیے کے قریب بیٹھ کر اسے ایک بار پھر پیار سے تھپتھپایا اور اس کے کانوں میں سرگوشی کی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے اپنی بڑی بڑی معصوم آنکھوں سے مجھے دیکھا، جیسے وہ میری بات کو سمجھ رہا ہو اور میرے الفاظ اس کے دل کو تسلی دے رہی ہوں۔ میں نے کچھ دیر اور اس کے پاس بیٹھنے رہنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ مکمل طور پر پرسکون ہو جائے۔ اس دوران میں نے محسوس کیا کہ رات کی خاموشی میں ہم دونوں کے درمیان ایک انکہی باتیں ہو رہی ہیں۔ میری موجودگی اور دیے کی روشنی نے اسے وہ اعتماد دیا جس کی اسے ضرورت تھی۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ اب پرسکون ہے، میں آہستگی سے اٹھی اور واپس اپنے بستر کی طرف چل دی۔
बिस्तर में लेटते ही मेरे जहन में वही बकरी का बच्चा और उसकी मासूमियत गर्दिश करने लगी। मैं मुसलसल उसके बारे में सोचने लगी, उसके खौफ और उसकी बेबसी के बारे में। मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने आज रात कुछ खास किया हो, किसी की मदद की हो जिसकी वाकई जरूरत थी। मेरे दिल में एक सुकून और खुशी की लहर दौड़ गई और मैंने खुद से वादा किया कि कल सुबह जल्दी उठकर इसे दोबारा देखूंगी और यकीन दिलाऊंगी कि वो अकेला नहीं है। मेरा नाम हिना है और मेरा ताल्लुक एक निहायत गरीब घराने से है। हम 3 बहनें हैं और हमारा कोई भाई नहीं है। मैं बहनों में सबसे बड़ी हूँ और मेरी उम्र 20 साल है। मैट्रिक तक तालीम हासिल करने के बाद मैंने आगे पढ़ाई का मुतालबा किया, लेकिन हमारी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया जब मेरे वालिद अचानक इंतकाल कर गए। वालिद शाम के वक्त दुकान पर बैठे थे। उनकी आंखों में मामूल के मुताबिक दिन भर की थकन थी, मगर वो हमेशा की तरह मजबूत नजर आ रहे थे। अचानक उनकी तबीयत खराब होने लगी, चेहरे पर दर्द की लकीरें नुमायां होने लगी और उनका सांस फूलने लगा। वो अपनी जगह से उठने की कोशिश कर रहे थे कि उनके जिस्म ने उनका साथ छोड़ दिया। वकार, जो दुकान पर वालिद का हाथ बटाता था, फौरन आया और उसने फौरन हमें इत्तला दी। उसकी आवाज में घबराहट थी। बाजी, अब्बू की तबीयत बहुत खराब हो रही है, जल्दी आए। मैंने अपनी माँ और छोटी बहनों को जल्दी से इकट्ठा किया और हम सब तेजी से दुकान की तरफ भागे। हमने वालिद को रिक्शे में बिठाया और तेजी से अस्पताल की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में वालिद की हालत मजीद बिगड़ने लगी। हम सब दुआएं कर रहे थे, अल्लाह से मदद की इल्तिजा कर रहे थे। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें इमरजेंसी वार्ड में ले लिया। हम सब बाहर इंतजार कर रहे थे। दिलों में खौफ और आंखों में आंसू थे। कुछ देर बाद एक डॉक्टर बाहर आया। उसके चेहरे पर अफसोस का इजहार था। उसने आहिस्ता आवाज में कहा, हमने पूरी कोशिश की मगर उन्हें बचा नहीं सके। आपके वालिद को हार्ट अटैक हुआ था और उनका इंतकाल हो गया है। ये खबर सुनकर हमारे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरी माँ चीख उठी और हम सब गम से निढाल हो गए। वालिद की मौत हमारे लिए एक बड़े सहाने से कम नहीं थी। उनके बगैर हमारी जिंदगी का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। वो हमारे खानदान का सहारा थे और उनके जाने के बाद हम मुकम्मल तौर पर बेयारो मददगार हो गए थे। इस हादसे ने हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। हमने अपने सबसे बड़े मुहाफिज को खो दिया था और हमारे दिलों में एक गहरा जख्म छोड़ दिया था। अस्पताल से घर तक का सफर हमारी जिंदगी का सबसे दर्दनाक सफर था। हम सब एक दूसरे को संभालने की कोशिश कर रहे थे, मगर गम की शिद्दत हमें अंदर से कमजोर कर रही थी। वालिद की मौत ने हमारी जिंदगी यकसर तब्दील कर दी। घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई और हमारे दिलों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। मैंने हमेशा अपने वालिद को हमारा मुहाफिज, हमारे घर की मजबूत दीवार की तरह देखा था। उनके जाने से हमें महसूस हुआ कि हम एक बहुत बड़ी हिफाजत से महरूम हो गए हैं। मेरे वालिद की दुकान भी उनके मरने के साथ ही बंद हो गई। उस दुकान से न सिर्फ हमारा रोजगार जुड़ा था, बल्कि ये दुकान मेरे वालिद की मेहनत और मोहब्बत का समर थी। वालिद के जाने के बाद दुकान का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया, जैसे उसके साथ हमारी तमाम उम्मीदें और ख्वाब भी बंद हो गई हों। दुकान पर एक लड़का काम करता था जिसका नाम वकार था। वो हमारे खानदान का ही हिस्सा समझा जाता था। वालिद की वफात के बाद वकार ने कुछ दिन तक तो दुकान चलाने की कोशिश की, मगर वो जानता था कि अब ये दुकान वैसी नहीं चलेगी। वो देख रहा था कि दुकान की हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी और ग्राहकों की कमी भी वाज़ेह थी। उसने मुझे एक दिन बताया, बाजी, मुझे शहर जाना होगा, यहाँ मेरी कोई गुजर बसर नहीं हो सकेगी। उसकी आंखों में मायूसी की झलक थी। वकार के जाने के बाद दुकान बिल्कुल वीरान हो गई। मैं जिस रोज उस दुकान के सामने से गुजरती तो दिल में दर्द की लहर उठती। ये दुकान हमारे खानदान की पहचान थी और अब ये एक सुनसान इमारत बनकर रह गई थी। वालिद के साथ ही हमारे सारे ख्वाब और उम्मीदें भी जैसे दफन हो गए थे। मेरी माँ की आंखों में आंसुओं की नमी थी और वो हर रोज दुकान के बंद दरवाजे को देखकर मखमूम हो जाती थी। वो दुकान जहाँ कभी हंसी की गूंज सुनाई देती थी, अब खामोशी की गवाह बन गई थी। वालिद के बगैर हमारी जिंदगी एक खंडर बन चुकी थी, जिसमें सिर्फ दर्द और मायूसी का बसेरा था। मुझे याद है कि वालिद किस तरह सुबह सवेरे दुकान खोलने जाते थे और शाम देर तक मेहनत करते थे। वो दुकान उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा थी और उसके बंद होने का मतलब था
कि हमारी जिंदगी में खुशी के दिनों का भी खात्मा हो गया है। मेरी छोटी बहनें भी इस तब्दीली को महसूस कर रही थी। वो खेलने कूदने की उम्र में थी, मगर उनकी आंखों में भी एक तरह की वीरानी थी। हम सब ने मिलकर एक दूसरे को सहारा देने की कोशिश की, मगर दिलों में एक खलासा महसूस होता था जो कभी पूर्ण नहीं हो सकता था। हमारी जिंदगी अब एक मुसलसल जदोजहद बन चुकी थी, जिसमें हर दिन एक नई इम्तिहान का सामना करना पड़ता था। मेरे वालिद की दुकान के बंद होने के साथ ही हमारे दिलों में भी उम्मीद की आखिरी किरण मद्धम हो गई थी। मेरी माँ ने अपने आप को बहुत मजबूत जाहिर करने की कोशिश की, लेकिन मैं उनकी आंखों में छुपे आंसू और दिल की गहराई में मौजूद गम को महसूस कर सकती थी। हम सब बहनें भी अंदर से बहुत टूट चुकी थीं, लेकिन एक दूसरे के सामने मजबूत बनने की कोशिश कर रही थी। इस वाक़ये ने मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। मैंने अपने ख्वाबों को थोड़ी देर के लिए परे रख दिया और खानदान की जिम्मेदारियों को संभालने का फैसला किया। मैं जानती थी कि मुझे अब अपनी बहनों और माँ के लिए वो दीवार बनना है जो हमें सहारा दे सके। मेरे दिल में एक अज़म पैदा हुआ कि मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी कि हमारा खानदान इस मुश्किल वक्त से निकल सके। इसी अज़म के साथ मैंने घर के छोटे मोटे कामों से लेकर कुछ और काम भी करने की कोशिश शुरू की। अगरचे ये आसान नहीं था, लेकिन हर दिन मैं अपने वालिद की यादों और अपनी बहनों की मोहब्बत में एक नया हौसला पाल लेती थी। हमारी जिंदगी में एक नए सफर की शुरुआत हो चुकी थी, जहां मुश्किलात भी थीं और एक उम्मीद की किरण भी। वालिद के फौत होने के कुछ हफ्ते बाद ही मैंने फैसला कर लिया कि मुझे घर से बाहर कदम निकालना होगा। वालिद की वफात के बाद हमारा सारा खानदान टूटकर बिखर गया था। हर तरफ अंधेरा और मायूसी का आलम था। मेरे वालिद के साथ जायदाद के मामलात पर सभी की रंजिशें थीं, इसलिए खानदान का कोई भी फर्द हमसे रिश्ता नहीं रखना चाहता था। हमारे लिए जिंदगी का हर दिन एक नई मुश्किल लेकर आता था। मेरे वालिद की दुकान हमारे खानदान की तारीख और जदोजहद की गवाह थी। ये दुकान मेरे दादा के हिस्से से मिली थी, जो उन्होंने अपनी मेहनत और पसीने से बनाई थी। लेकिन वालिद के फौत होने के बाद दुकान पर हमारी मलकियत के साथ साथ खानदान की पुरानी रंजिशें भी सामने आई। मेरे चचा, जो मेरे वालिद के छोटे भाई थे, ये चाहते थे कि दुकान की आधी कमाई उन्हें दी जाए। उनका कहना था कि ये दुकान दादा की मलकियत थी और उनका भी इस पर हक था। हालांकि चचा ने अपने हिस्से की दुकान को बेचकर पैसे खर्च कर दिए थे और अब भी इस दुकान से कुछ हासिल करना चाहते थे। मेरे वालिद की जिंदगी में भी ये मसला चलता रहा, लेकिन वालिद ने हमेशा कोशिश की कि मामलात को सुलझा लिया जाए। वो चचा को नाराज नहीं करना चाहते थे और हमेशा उन्हें एहतराम दिया। मगर वालिद की वफात के बाद चचा का रवैया बिल्कुल बदल गया। उन्होंने हम पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि हम दुकान की आधी कमाई उन्हें दें। मेरी माँ इन तमाम मुश्किलात के बावजूद मजबूत रहने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने चचा को समझाने की कोशिश की कि दुकान की कमाई से हम बमुश्किल अपने घर का खर्च पूरा कर पाते हैं, लेकिन चचा अपनी जिद पर कायम थे। उनकी ये सारी हरकतें हमारी मुश्किलात में मजीद इजाफा कर रही थी। मैंने भी चचा से बात की और उन्हें याद दिलाया कि उन्होंने अपने हिस्से की दुकान बेचकर पैसे खर्च कर दिए हैं और अब हमारा हक है कि हम इस दुकान की कमाई से अपना गुजारा करें। मगर चचा नहीं माने। उनके दिल में सिर्फ अपनी गर्ज थी और वो किसी भी तरह अपने हक को हासिल करना चाहते थे। ये तनाज़ा हमारे लिए एक नया दर्द सर बन चुका था। दुकान के बंद होने के बाद हमारी माली मुश्किलात पहले ही बहुत बढ़ चुकी थी और चचा की जानिब से उस दबाव ने हमें मजीद कमजोर कर दिया। हमने कानूनी रास्ते पर जाने का सोचा, मगर हमारी माली हालत ऐसी नहीं थी कि हम किसी वकील की खिदमत हासिल कर सकें। ये सब कुछ एक ख्वाब की तरह था जो अचानक बिखर गया था। वालिद के जाने के बाद हम एक ऐसे दरिया में बह रहे थे जिसका कोई किनारा नहीं था। हमें हर दिन एक नई लड़ाई लड़नी पड़ती थी और हर लम्हा एक नए इम्तिहान का सामना करना पड़ता था। हमारे घर की हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी। हम सब ने मिलकर इस मुश्किल वक्त को बर्दाश्त करने की कोशिश की, मगर चचा की ये हरकतें हमें अंदर से तोड़ रही थी। मेरे वालिद के ख्वाब, उनकी मेहनत और हमारी उम्मीदें, सब कुछ इन रंजिशों की नजर हो रहा था। मेरी माँ की आंखें हर वक्त रोती रहती थी और मेरी छोटी बहनें खौफ और परेशानी के आलम में जी रही थी। घर के दरो दीवार पर मायूसी की छाप नुमाया थी। हर रोज का गुजरना एक नए इम्तिहान से कम नहीं था। हम में से कोई भी नहीं जानता था कि कल क्या होगा, खाना कहाँ से आएगा या हम कैसे जिंदा रहेंगे। एक दिन मेरी माँ ने मुझे बुलाया और कहा, बेटा, हमें कुछ करना होगा, हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा।
वरना हम जिंदा नहीं रह सकेंगे। उनके अल्फाज में दुख और मजबूरी की झलक थी। मैंने उनकी बात को दिल से समझा और फैसला कर लिया कि मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। मैंने अपनी छोटी बहनों को संभालने की जिम्मेदारी ली और शहर की तरफ चल पड़ी। मैंने बहुत सी जगहों पर नौकरी की तलाश की, मगर हर जगह से मायूसी का सामना करना पड़ा। कोई भी हमारी हालत पर तरस खाने वाला नहीं था। सब लोग अपने अपने मामलात में मसरूफ थे और हमारी तरफ देखने का वक्त किसी के पास नहीं था। एक रात जब हम सब भूख से निढाल होकर बिस्तर पर लेटे थे, मेरी माँ ने कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो, वही हमें रास्ता दिखाएगा। उनके अल्फाज में उम्मीद की किरण थी, मगर हमारे दिलों में खौफ का साया छाया हुआ था। हमारी जिंदगी में हर दिन एक नए इम्तिहान का सामना था। मेरी छोटी बहनों की मासूम आंखों में भूख और मायूसी की झलक मुझे अंदर से तोड़ देती थी। मैंने खुद को मजबूत बनाया और एक बार फिर नौकरी की तलाश में निकल पड़ी। हर दरवाजे पर दस्तक देते हुए मेरी उम्मीदें टूटती जा रही थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। एक दिन मुझे एक छोटे से कपड़ों के स्टोर पर काम करने का मौका मिला। मैंने दिलो जान से काम करने का सोचा ताकि मेरी माँ और बहनों को कुछ सुकून मिल सके। हमारे हालात कुछ बेहतर होने लगे, मगर मुश्किलात का सिलसिला अभी थमा नहीं था। खानदान के अफराद की रंजिशें और मुआशरे की बेहिसी हमें हर दिन नए चैलेंजेस देती रही। हमारी जिंदगी एक दर्द भरी कहानी बन चुकी थी, जिसका कोई अंत नहीं था। नौकरी से वापस आते वक्त मगरिब का वक्त हो गया था। आम तौर पर मैं 5 बजे बस में बैठ जाती थी, मगर आज सर भारी होने की वजह से मुझसे काम नहीं निमट रहा था, इसलिए देर हो गई थी। जब मैं बस स्टॉप पर रुकी तो मैंने दरख्त के नीचे एक बकरी का बच्चा देखा, जो बहुत घबराया और सहमा हुआ था। उसकी आंखों में खौफ और बेचारगी साफ नजर आ रही थी। मैंने वहां मौजूद लोगों से पूछा, ये किसका बच्चा है? ये बीमार लग रहा है, कोई जानता है? मगर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। सबने लापरवाही से इनकार कर दिया कि ये उनका बच्चा नहीं है। इसी असना में मगरिब की अजान शुरू हो गई और मुझे लेट हो जाने का एहसास हुआ। मेरी माँ घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी और उन्हें मेरी देर से परेशानी हो रही होगी। मगर इस बकरी के बच्चे की हालत देखकर मेरा दिल नहीं माना कि इसे यहाँ छोड़ दूं। मैंने उसे प्यार से उठाया और उसे अपने साथ ले लिया। मैं जानती थी कि मेरी माँ को शायद ये बात अजीब लगे, मगर मैं उसे इस हालत में नहीं छोड़ सकती थी। जब मैंने बकरी के बच्चे को उठाया तो उसके जिस्म से बुखार की गर्मी महसूस हुई। मैंने उसे अपने साथ मजबूती से पकड़ लिया और बस में बैठने के लिए स्टॉप की तरफ चल पड़ी। बस में बैठते ही मैंने बच्चे को अपनी गोद में रखा और सोचने लगी कि इसे कैसे ठीक किया जाए। मेरी जिंदगी पहले ही मुश्किलात से भरी हुई थी, मगर इस बच्चे की बेबसी ने मेरे दिल को नरम कर दिया था। घर पहुंचकर मैंने माँ को सारी बात बताई। उन्होंने भी बच्चे को देखकर अफसोस जाहिर किया और कहा, बेटा तुमने बिल्कुल ठीक किया कि इसे यहाँ ले आई, हम इसका ख्याल रखेंगे। माँ ने फौरन बकरी के बच्चे के लिए दूध गर्म किया और उसे पिला दिया। उस बकरी के बच्चे की हालत बेहतर करने की कोशिश में हमें एक नई जिम्मेदारी मिल गई थी, मगर उसकी बेबसी और मासूमियत ने हमें एक नया मकसद दिया। हमें उसकी सेहत की बहाली के लिए भरपूर कोशिश करनी थी और साथ ही अपने हालात का भी सामना करना था। न जाने क्यों मुझे उस बकरी के बच्चे पर बहुत प्यार आ रहा था। रात को भी मैंने सिर्फ उसी के बारे में सोचा। उसकी बेबसी और मासूमियत मेरे दिल को पिघला रही थी। मैंने रात भर उसके बारे में सोचा कि कैसे उसे बेहतर बनाया जाए और उसकी सेहत को बहाल किया जाए। सुबह होते ही मैं बिस्तर से उठी और सीधी उस बकरी के बच्चे के पास गई। वो अभी भी बहुत कमजोर और थका हुआ लग रहा था। मेरी माँ ने भी देखकर कहा, हमें इसे किसी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। मैंने जल्दी से नाश्ता किया और बच्चे को साथ लेकर करीबी वेटनरी डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बच्चे का मुआयना किया और कहा, ये बच्चा बीमार है और इसे फौरी इलाज की जरूरत है। उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी और हिदायत दी कि इसे बाकायदगी से दूध पिलाएं और आराम दें। मैं बच्चे को लेकर घर वापस आई और माँ के साथ मिलकर उसकी देखभाल करने लगी। हमने उसके लिए एक नरम बिस्तर बनाया और उसकी खुराक का खास ख्याल रखा। दिन गुजरते रहे और बच्चे की हालत में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आने लगी। वो पहले की निस्बत ज्यादा मुस्तैद और खुश नजर आ रहा था। अगले दिन जब मैं घर वापस आई तो अम्मा ने कहा कि राशन खत्म हो गया है। ये सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई। अम्मा को भी अब अक्सर सर में दर्द रहता था और वो थोड़ा सा भी सोचती तो फौरन सर दर्द होने लगता। मैं चाहती थी कि उन्हें घर की हर परेशानी से दूर रखूं, लेकिन हालात ऐसे थे कि हर चीज का बोझ मुझे ही उठाना पड़ रहा था। मेरी तनख्वाह मिलने में अभी कुछ दिन बाकी थे और घर में राशन का ना होना
एक बड़ी मुश्किल बन गई थी। मैंने फैसला किया कि अम्मा के लिए सुबह की चाय बनाकर पेश करूं ताकि उनका सर दर्द कुछ कम हो सके। किचन में जाते ही मैं हैरान रह गई। वहां 2 बड़े राशन के डिब्बे पड़े थे और साथ ही बकरी के बच्चे के लिए बहुत सारा दूध भी मौजूद था। ये देखकर मैं हैरान और खुश हो गई, मगर फौरन सोचने लगी कि ये सब कहाँ से आया। अम्मा से पूछा, ये राशन और दूध कहाँ से आया है? अम्मा ने भी हैरानगी से कहा, मुझे नहीं मालूम बेटा, शायद किसी ने हमारी मदद के तौर पर दिया हो। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और सोचा कि मुश्किल वक्त में अल्लाह की मदद हमारे साथ है। हमें मालूम नहीं था कि ये मदद कहाँ से आई है, मगर इसने हमारी परेशानी को कुछ देर के लिए दूर कर दिया था। मैंने अम्मा के लिए चाय बनाई और उन्हें प्यार से पेश की। चाय पीते वक्त उनके चेहरे पर सुकून का एक लम्हा देखकर मुझे दिली सुकून मिला। इस दौरान मैंने बकरी के बच्चे के लिए दूध गर्म किया और उसे पिलाया। ये गैर मुतवक्को मदद हमारे लिए एक नेमत थी। शायद कोई फरिश्ता हमारे हालात से वाकिफ था और हमारी मदद के लिए आया था। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद मैंने अज़्म किया कि मैं अपनी माँ और इस बकरी के बच्चे का हर मुमकिन ख्याल रखूंगी और किसी भी सूरत में हिम्मत नहीं हारूंगी। ताहम दिल ही दिल में मुझे इस बात का तजस्सुस जरूर था कि फिर वो फरिश्ता कौन है जिसने हमारी इस तरह से मदद की। इसकी वजह ये थी कि किसी को भी हमारे हालात से हमदर्दी नहीं थी और हम माँ बेटियां तो बहुत मुश्किल से गुजारा कर रही थी। आखिर कौन हमारे हालात के बारे में जानकर इतना दर्द ले गया कि हमारे लिए इतना सारा राशन चुपके से रख गया। ये बात बहुत हैरानकुन थी और मैं सोचती रह गई। ताहम उस दिन के बाद से मैंने उस बकरी के बच्चे का ज्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद ये सब उसी के आने की वजह से है। उसी के घर आने की बरकत ने हमारे काम में भी बरकत डाल दी और उसके अलावा हमारे घर में किसी फरिश्ते ने राशन भी डलवा दिया। मैंने पहले से बढ़कर उसका ख्याल रखना शुरू कर दिया था। एक रात जब मैं काम से आकर सो रही थी तो आधी रात के करीब मुझे एक आवाज से सुनाई दी। मेरा ध्यान फौरन बकरी के बच्चे की तरफ गया। मैं घबरा गई। मुझे यूं लगा जैसे वो किसी तकलीफ में है, इसलिए मैं फौरन सहन में निकली तो देखा जहां पर बकरी का बच्चा बंधा हुआ था वहां पर एक रोशनी फूट रही थी। मैं यकटुक उस रोशनी को खड़े देख रही थी। मुझसे कदम आगे नहीं बढ़ाए जा रहे थे। उस रोशनी में से एक नूर निकल रहा था। सहन के बीचों बीच हैरत से मैं उस कोने की तरफ देख रही थी और समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये रोशनी किस चीज की है। हालांकि अंधेरे में वो रोशनी आंखों को बहुत भली लग रही थी, लेकिन मुझे उससे खौफ भी आ रहा था। उस रोशनी को महसूस करके मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मैं जान नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब क्या है और बकरी के बच्चे का इससे क्या ताल्लुक है। देखते ही देखते उस रोशनी में से एक वजूद ज़ाहिर हुआ जो किसी खूबसूरत और कम उम्र लड़के का था। उसने सफ़ेद रंग का शलवार कुर्ता पहन रखा था और बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसकी आंखों में एक खास चमक थी जो उस रोशनी से भी तेज थी और मुझे दूर से ही महसूस हो रही थी। मैं उस नौजवान को देखकर घबरा गई थी। आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है और कौन है? कहीं कोई चोर उचक्का तो नहीं? लेकिन नहीं, चोर ऐसे खूबसूरत नहीं होते। और फिर जिस तरह से उससे रोशनी फूट रही थी, इस बात ने मुझे अपनी जगह पर जमा कर रख दिया था। एकदम वो मेरी तरफ बढ़ा और कहने लगा, खौफज़दा मत हो, ये मैं हूँ। मेरा नाम जुनैद है और मैं एक जिनज़ादा हूँ। उस जिनज़ादे को अपने सामने देखकर मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं और फिर मैं कब बेहोश होकर गिर गई मुझे कुछ पता न चला। जब मेरी आंख खुली तो अम्मा को अपने पास पाया और हैरत से एकदम उठ बैठी। अम्मा, वो जुनैद, वो जिनज़ादा। मेरे मुंह से बेरब्त से अल्फाज निकले। अम्मा ने हैरत से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, तुम क्या कह रही हो? क्या बात कर रही हो? आखिर ऐसा क्या है? अम्मा ने परेशानी के आलम में मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें रात उस जिनज़ादे वाले वाक़े के बारे में बता दिया। लेकिन अब मुझे इस बात का वहम हो रहा था कि कहीं मैंने कोई ख्वाब तो नहीं देखा। ये हकीकत से परे की बात लग रही थी। यही वजह थी कि मुझे ख्वाब का गुमान हो रहा था। वो बकरी का बच्चा अब भी पुरसकून सा वहीं पर बंधा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों की चमक देखकर मुझे एकदम किसी की आंखों की चमक याद आ गई और मेरे पूरे वजूद में एक सर्द सी लहर दौड़ती चली गई। काम पर जाते हुए मुझे 1 महीना हो गया था और आज तनख्वाह मिलनी थी, लेकिन जब मैं तनख्वाह लेने गई तो पता चला कि फैक्ट्री के मालिकान सिक्योरिटी के नाम पर 1 महीने की तनख्वाह रखते हैं और मुझे इस महीने नहीं बल्कि अगले महीने तनख्वाह मिलेगी। इस बात ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था।
क्योंकि मेरे पास तो घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, और जो राशन उस दिन कोई फरिश्ता चुपके से किचन में रख गया था, अब तो वो भी थोड़ा सा ही बाकी था। तो फिर हम पूरा महीना क्या करते, किस तरह गुजारा करते? हम माँ बेटियां कैसे पूरा महीना गुजारते, इस सोच का आना था कि मैं बेहद परेशान हो गई, और इसी परेशानी के आलम में पैदल ही घर की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में कई तरह की सोचें मेरे जहन को चकरा रही थी कि अचानक मुझे रास्ते में एक लिफाफा गिरा हुआ नजर आया। बेख्तियार झुककर मैंने उसे उठा लिया और लिफाफे को खोलकर देखा तो उसके अंदर एक भारी रकम मौजूद थी, जिसे देखकर मैं दंग रह गई। वो तकरीबन 20,000 रुपए थे और यूं सड़क के बीचों बीच गिरे पड़े थे। मैं बहुत हैरान हुई, क्योंकि इतनी बड़ी रकम कोई कैसे खो सकता है। लेकिन यहाँ पर गिरे हुए इन पैसों को देखकर यकदम मुझे यूं ख्याल आया जैसे किसी ने गैबी तौर पर मेरी मदद की हो। मैंने इर्द गिर्द देखा, लेकिन कोई भी मेरी तरफ मुतवज्जो नहीं था, और ना ही यूं महसूस हुआ कि कोई अपनी रकम ढूंढ रहा है। बेख्तियार मैंने उस लिफाफे को अपने बैग में डाल दिया और घर की तरफ चल पड़ी। मेरा इरादा यही था कि घर जाकर अम्मा से यही कहूंगी कि मुझे तनख्वाह मिली है, क्योंकि अगर अम्मा को मैं ये बताती कि तनख्वाह नहीं मिली और ये पैसे मुझे रास्ते में मिले हैं, तो शायद वो कुछ परेशान हो जाती। यही सोचकर मैंने उन्हें यही कहा कि तनख्वाह मिल गई है, और अम्मा के हाथ पर वो पैसे रख दिए। दिल ही दिल में मुझे शर्मिंदगी भी हो रही थी कि मैं माँ से झूठ बोल रही हूँ, लेकिन क्या करती, उस वक्त मेरे पास और कोई चारा नहीं था। अम्मा ने उन पैसों से कुछ और राशन दिलवा लिया और यूं घर में कुछ बेहतरी तो हो गई, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर इस बात की तशवीश थी कि अगर कोई मुझसे वो रकम लेने के लिए आ गया तो फिर मैं क्या करूंगी, कहाँ से वो रकम अदा करूंगी। इस सोच का आना था कि मुझे बार बार परेशानी होने लगी, और मैं फैक्ट्री से जब वापस आ रही थी तो उसी रास्ते पर गुजरते हुए मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी कोई आकर ये सवाल करेगा कि मेरी रकम वापस कर दो। अपने ख्यालों में गुम आगे चल रही थी कि अचानक मुझे अपने पास किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। चौंक कर सर उठाया तो मेरे सामने वही जिनज़ादा खड़ा था जिसने अपना नाम जुनैद बताया था। उसे देखकर मेरे पूरे जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। मुझे यकीन हो गया कि उस दिन मैंने जो भी देखा था वो ख्वाब नहीं था, एक हकीकत था। मेरी आंखों के फैले हुए खौफ को महसूस करके वो कहने लगा, मुझसे डरो मत, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि परेशान मत हो। मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आया। मैं तुम्हारे हालात को जानता हूँ और समझता हूँ कि तुम कितनी मुश्किल में हो, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। उस जिनज़ादे की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो कौन है और कहाँ से आया है, वो मुझसे क्या चाहता है। इस बात ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे, जबकि उसकी आंखों की तरफ देखते हुए मुझे किसी और की आंखों का ख्याल आ रहा था। उसकी आंखों की चमक मुझे किसी की याद दिला रही थी। एकदम से वो कहने लगा, मैं वही बकरी का बच्चा हूँ जो तुम्हारे घर में बंधा हुआ है। वो मेरा ही एक रूप है। मैंने जब तुम्हें परेशान देखा तो तुम्हारी मदद का सोचा। मुझे कोई और तरीका समझ नहीं आया, इसलिए मैंने खुद को एक कमजोर और बेज़रर सा बकरी का बच्चा जाहिर किया, और तुमने मुझसे मोहब्बत जताई और मुझे अपने घर ले गई। मुझे तुम्हारा ये ख्याल रखना बहुत अच्छा लगा। तुमने इंसानियत दिखाई और मुझे ये बात पसंद आई। यही वजह थी कि जब मैंने देखा कि तुम्हारे घर में राशन नहीं है तो मैंने उसी दिन वो राशन दिलवा दिया, और जब तुम्हें तनख्वाह नहीं मिली तो परेशानी से तुम यहाँ पर चलती आ रही थी। मैंने वो रकम रख दी ताकि तुम परेशान मत हो, तुम्हें आसानी रहे। तुम मुझसे डरो मत, मैं बिल्कुल बेसरर हूँ और तुम्हारे मामले में तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करूँगा। उस जिनज़ादे के मुंह से ये सब सुनकर मैं दंग रह गई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो एक बेसरर सा बकरी का बच्चा एक जिनज़ादा होगा। तभी उसी दिन वो रोशनी उसकी आंखों से फूट रही थी, और फिर जिस तरह वो मुझे ममनूनियत से देखता तो मुझे बड़ी अपनायत का एहसास होता। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उससे क्या कहूँ, इसलिए चुपचाप वहां से निकल आई। घर आई तो सबसे पहले मेरा ध्यान बकरी के बच्चे की तरफ ही गया। वो अभी भी वहीं पर बंधा हुआ था। एक लम्हे के लिए खौफ का तासुर मेरी आंखों में उभर आया। मैंने सोच लिया था कि अब इसे यहाँ से भेज दूंगी। न जाने क्यों मुझे इससे बहुत डर लगने लगा है। और यही बात जब मैंने अम्मा से कही तो वो कहने लगी, नहीं नहीं, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम नहीं जानती घर में इसके आने के बाद कितनी रौनक हो गई है, और फिर जिस तरह इसके आने से बरकत पड़ गई है मैं सोच भी नहीं सकती थी। वो तो बस थोड़ा सा दूध पीता है, लेकिन उस थोड़े से दूध के बदले में हमारे घर में बहुत बरकत है।
मैं तुम्हें उससे नहीं निकालने दूंगी, और अब वो बिल्कुल ठीक है, बाकी उसका ख्याल मैं रखूंगी, तुम उसकी तरफ से फिक्रमंद ना हो। अम्मा ने जल्दी से मुझे जवाब दिया, जबकि मैं हैरानी से अम्मा की शक्ल देख रही थी, जिन्हें पहले इस बात पर एतराज था कि आखिर में वो बकरी का बच्चा घर उठाकर क्यों ले आई, और अब वो उसे घर से नहीं निकालना चाहती थी। लेकिन मैं अम्मा को सच भी नहीं बता सकती थी, इस तरह शायद वो खौफजदा हो जाती या फिर ये समझती कि मुझ पर कोई जिन ज्यादा आशिक है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने अपने लबों को सी लिया, लेकिन उस दिन के बाद से मैं बकरी के बच्चे के पास नहीं गई। ताहम उसकी आंखों की चमक मुझे दूर से ही महसूस होती तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। मुझे ऐसे लगता जैसे वो मुझे अपनी तरफ बुला रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहती। मैंने अपने आप को महदूद कर लिया था और कोशिश यही होती थी कि मैं उससे मुखातिब भी ना करूं और देखूं भी ना। दिन यूं ही गुजर रहे थे। वो बकरी का बच्चा अब भी उसी घर में था और अम्मा बाकायदा उसका अपनी औलाद की तरह ख्याल रखती थी, जबकि मैं अपने काम में मसरूफ हो गई थी। फैक्ट्री से जब वापस आई तो उसके बाद इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि कुछ और कर पाती। लेकिन एक दिन जब मैं घर आई तो वो कोना खाली था। मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हुआ। अम्मा से जब मैंने उस बकरी के बच्चे के बारे में पूछा तो पता चला कि वो दोपहर से ही गायब है। कहाँ गया, किधर गया, कौन ले गया, कुछ पता नहीं चला। अम्मा इसीलिए परेशान बैठी हुई थी। वो उसे ढूंढ ढूंढ कर थक गई और अब उन्हें इस बात की बेचैनी थी कि न जाने वो कहाँ चला गया, कहीं उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। अम्मा ने रो रो कर खुद को हल्कान कर लिया था। अम्मा की हालत को देखते हुए मैंने उसके बारे में सच बताने का फैसला कर लिया, और जब मैंने अम्मा को उसके बारे में सच बताया तो अम्मा ये जानकर हैरान रह गई। उनकी आंखों में खौफ और हैरत का तासुर था और मुझे कहने लगी, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो एक जिनज़ादा है। अम्मा ने जब मुझसे ये कहा तो मैं वजाहत पेश करने लगी। अम्मा, दरअसल मैं नहीं चाहती थी कि आप खौफज़दा हो, और फिर वैसे भी उसने हमारी इतनी मदद की, घर में राशन दिलवाया, मुझे तनख्वाह की रकम दी और इसके अलावा भी वो हमारी मदद करता रहा। तो मैंने सोचा कि चलो जब तक घर में रहना चाहता है रह ले, लेकिन अब वो अचानक चला गया और आपकी तबीयत खराब हो गई, इसलिए मैंने आपको सच बता दिया, वरना शायद मैं आपको कभी इस सच से आगाह न करती। मैंने अम्मा को तफसील से आगाह किया तो वो खामोश हो गई। ये सच था कि अम्मा की मोहब्बत उस बकरी के बच्चे से काफी ज्यादा हो गई थी, लेकिन अब उसके बारे में सब जानकर उन्हें बहुत अजीब महसूस हो रहा था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि बकरी का बच्चा असल में एक जिनज़ादा होगा, और यही बात सबसे हैरानकुन थी। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। उस बकरी के बच्चे का उसके बाद कुछ पता नहीं चला, लेकिन एक दिन जब मैं घर पर आई तो चचा घर पर काफी ऊंचा ऊंचा बोल रहे थे और अम्मा को काफी गुस्से से बात कर रहे थे। मैं एकदम आगे बढ़ी, चचा से सवाल किया, क्या बात है चचा, आखिर आज आप इतने दिनों बाद आए हैं और इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? तो वो कहने लगे, मैं चाहता हूँ कि अब तुम लोग वो दुकान बेच दो, मुझे उसमें से अपना हिस्सा चाहिए। तुम लोग अपनी रकम रख लो, इस तरह मैं बार बार तुम लोगों के सामने आकर जलील नहीं हो सकता। लेकिन तुम लोग तो बात ही नहीं सुन रहे। चचा ने गुस्से से कहा तो मैं अम्मा की तरफ देख कर रह गई। चचा अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं थे। उन्हें जरा भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि हम किस तरह गुजारा कर रहे हैं और कैसे हमारे घर के हालात हैं। हालांकि वो शख्स अपना हक पहले ले चुका था, लेकिन फिर भी उसे हमारा हक भी चाहिए था। मैंने अम्मा की तरफ देखते हुए चचा जान से कहा, ठीक है, आप वो दुकान बेच दें और जितने पैसे मिलते हैं आधा आधा हिस्सा कर ले, लेकिन उसके बाद से आपका और हमारा जीना मरना खत्म है। आप दोबारा कभी हमारी जिंदगी में मत आना। मैंने चचा जान से साफ साफ कह दिया तो वो एक हनकारा भरते हुए वहां से चले गए और फिर मैं फूट फूट कर रोने लगी। हमें तो जैसे इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि चचा हमारे साथ ऐसा भी कर सकते हैं। अब्बा के जाने के बाद हम खुद को बिल्कुल बेसाहिबा महसूस कर रहे थे। उस वक्त कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। ताहम इतने में ही दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं चौंक कर उठी, न जाने इस वक्त कौन है, जबकि हमारे हालात की वजह से तो हमारे घर पे कोई आता भी नहीं था। दरवाजे पर आकर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था, लेकिन जमीन पर एक कागजात की फाइल पड़ी थी। मैं हैरान हुई, आखिर ये कागजात कहाँ से आए और कौन रख कर गया। यही सोचते हुए मैंने वो फाइल उठा ली और फिर उसे खोल कर देखा तो उसमें अब्बा की दुकान के कागजात थे। वो दुकान मेरे और अम्मा के नाम पर थी। मैं बेहद हैरान हुई। अब्बा ने न जाने कब दुकान हमारे नाम कर दी थी। फिर इसका मतलब है कि इसमें चचा का कोई हिस्सा नहीं बनता। मैं अंदर आ गई
और अम्मा को जब ये सूरत हाल बताई तो अम्मा भी बेहद हैरान हुई और कहने लगी, आखिर हमारा ऐसा कौन सा हमदर्द है जो इस तरह वहां पर फाइल रख गया, जबकि हमारे पास तो दुकान के कागजात ही नहीं थे। अम्मा की तशवीश बचा थी, लेकिन न जाने क्यों मेरा ध्यान बार बार जुनैद की तरफ जा रहा था। उस जिनजादे की बदौलत ही यकीनन ये फाइल हम तक पहुंची है। मैंने अम्मा से भी यही कहा, अम्मा हो ना हो ये फाइल यकीनन वो जिनजादा ही यहाँ पर रख कर गया है, वरना और किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी। मेरी बात सुनकर अम्मा सर हिलाकर रह गई और कहने लगी, हाँ तुम सही कह रही हो, यकीनन ये फाइल उसी ने रखी है। वो अब तक हमारी सब मुश्किल आसान करता आया है, उसने हमारी ये मुश्किल भी हल कर दी। अम्मा ने उसे सराहते हुए कहा, जबकि मैं खामोश हो गई। मैं उससे मिलकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ उससे मिलूं और कहाँ से उसे ढूंढूं। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए थे। चचा दोबारा घर पर नहीं आए थे। न जाने उन्होंने क्या सोचा था और वो अब क्या चाहते थे। लेकिन एक दिन जब मैं फैक्ट्री से वापस आ रही थी तो रास्ते में मुझे जुनैद मिल गया। उसे यूं अचानक अपने सामने देखकर मैं दंग रह गई थी और फिर बेइख्तियार खुश होते हुए उससे कहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तुमने जिस तरह हमारी मदद की है कोई अपना भी ऐसा न करता। जबकि जुनैद ने बड़ी गहरी नजरों से मुझे देखा था। उसकी आंखों की खास चमक ने आज भी मुझे खौफजदा कर दिया था। न जाने वो आंखें ऐसी क्यों थी और हमेशा मुझे खौफ में क्यों मुब्तला कर देती थी। ताहम वो कहने लगा कि तुम शुक्रिया अदा मत करो, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे भी जिस तरह तुमने एक बीमार बकरी के बच्चे की मदद की और फिर अपने घर पर रखकर जिस तरह उसकी खिदमत की, मैं कभी वो नहीं भुला सकता। तुम अपना ख्याल रखना और जब भी तुम्हें कभी मेरी मदद की जरूरत हो तो बस एक बार पुकार लेना, मैं चला आऊंगा। जुनैद ने बड़े जज्ब के आलम में कहा तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं उसकी आंखों में देखती रह गई। न जाने क्या बात थी, आज पहली बार जुनैद मुझे अच्छा लगा था, वरना इससे पहले मैंने उसे कभी गौर ही नहीं किया। हमेशा मुझे उससे खौफ आता था। आज पहली बार मेरे दिल में उसकी मोहब्बत सर उठा रही थी और यूं महसूस हो रहा था जैसे वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल पर कब्जा करता जा रहा है। मैं उससे नजरें चुराते हुए वहां से निकलने लगी तो उसने मुझे आवाज दे दी और कहने लगा, मैं तुम्हारा मुंतजिर रहूंगा। उसकी ये बात सुनकर मेरे दिल की धड़कन एक लम्हे के लिए रुककर तेजी से चलने लगी और फिर मैंने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। मुझे मालूम था ये हमारी आखिरी मुलाकात नहीं है, ये तो अभी शुरुआत है। उस दिन के बाद से मैंने कुछ नई चीजों को करने का सोचा। अब्बा की दुकान को साफ सफाई करवा के मैंने किराए पर देने का सोचा था और इस सिलसिले में अम्मा ने मेरी मदद करने की ठानी। अम्मा का ख्याल था कि किराए पर रहने देती हैं, अब्बा की दुकान के सामान को दोबारा डिलवा कर नए सिरे से हम खुद ही इसे चलाते हैं और इस सिलसिले में मैं अम्मा की हामी थी। हमने 2 दिन में ही दुकान को अच्छी तरह साफ सुथरा कर लिया और फिर उसके बाद मैंने और अम्मा ने मिलकर कुछ सामान खरीद लिया था। अभी तो हमारे पास रकम कम थी, लेकिन हमें इस बात की उम्मीद थी कि जल्द ही हम दुकान को एक अच्छे तरीके से खड़ा कर लेंगे। और फिर जैसे ही हमने कुछ सामान दिलवाया तो अम्मा ने दुकान को वक्त देना शुरू कर दिया। अम्मा के साथ मेरी छोटी बहन मदद करवाती थी। पहले पहल जब अम्मा दुकान पर खड़ी हुई तो लोगों ने एतराज किया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग अम्मा से सामान लेने लगे। हमारी मजबूरी के बारे में सब जानते थे। भाई कोई था नहीं और अब्बा का इंतकाल हो गया था, तो ऐसे में औरतों ने ही घर से बाहर निकलकर कमाई करनी थी और अपने जीने का आसरा करना था। यही वजह थी कि जो लोग पहले बातें करते थे अब आहिस्ता आहिस्ता करके वही अम्मा का साथ देने लगे और दुकान से सामान लेने लगे। और मैं समझती हूँ कि इस सब में जुनैद ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। अगर जो वो उस दिन वहां पर फाइल ना रख कर जाता तो फिर हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती। चचा ये सारी दुकान हड़प कर जाते और हम माँ बेटियां हाथ मलती रह जाती। अब तो दुकान से अच्छी खासी आमदनी होने लगी थी। अम्मा सोच रही थी कि दुकान के सामान को बढ़ाया जाए। इसी वजह से उन्होंने मुझे कहा कि कुछ रकम का अगर बंदोबस्त हो जाए तो फिर क्या ही अच्छी बात हो। अम्मा की बात सुनकर मैंने सर हिला दिया, लेकिन अब मुझे खुद पता नहीं था कि हम रकम का बंदोबस्त कहाँ से करेंगे। ताहम मुझे भी अंदाजा था कि दुकान में जितना ज्यादा सामान होगा उतना ही ज्यादा ग्राहक आएंगे। इसी उधेड़ बन में 2-3 दिन गुजर गए। एक दिन जब मैं घर वापस आई तो अम्मा के हाथ में काफी ज्यादा पैसे देकर हैरान रह गई। अम्मा ये नोट कहाँ से आए? मैंने हैरानी से पूछा तो अम्मा कहने लगी, आज डाकिया आया था और मनी ऑर्डर देकर गया है। मुझे नहीं मालूम कहाँ से आई, लेकिन ये अच्छी खासी रकम है।
हम दुकान में काफी सामान डलवा सकेंगे और इस तरह हमारी आमदनी में भी खातिर खा इजाफा होगा। अम्मा ने जब मुझे ये बताया तो न जाने क्यों मेरा ध्यान जुनैद की तरफ चला गया। मैं जान गई कि ये रकम जुनैद ने ही भेजी है, सिर्फ उसे ही हमारी मुश्किलात का अंदाजा है और वो हमारा सच्चा खैरख्वाह है। मैंने वो रकम देखी तो तमानियत के एहसास से मुस्कुरा दी, क्योंकि मैं जान गई थी कि अगर हमारा कोई सच्चा खैरख्वाह है तो वो सिर्फ जुनैद है, और ये रकम भी उसने इसी वजह से दी है कि हमसे कहीं और से बंदोबस्त नहीं हो पा रहा था, और हमारे हालात के बारे में तो वो अच्छी तरह से जानता था। इसी वजह से चुपचाप उसने फिर से हमारी मदद कर दी। अम्मा ने वो रकम गिनकर अंदर रख दी और कहने लगी, मैं तो आज बहुत खुश हूँ, यूं लग रहा है जैसे एक नई जिंदगी मिली हो, वरना तुम्हारे अब्बा के गुजरने के बाद तो हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। अब मुझे उम्मीद हो चली है कि मैं तुम लोगों का आसानी से ब्याह कर सकूंगी और तुम लोगों को अगले घर सुधार सकूंगी। अम्मा के अपने ही ख्यालात थे और अपनी ही सोच थी, लेकिन मैं जुनैद के बारे में सोच रही थी, जिसने फिर से एक बार आकर मेरा दिल जीत लिया था, और न जाने अब वो आगे किस तरह हमारे साथ खड़ा होता। मैं जान गई थी कि जुनैद के अलावा और कोई भी मुझसे इतनी मोहब्बत नहीं कर सकता। मैंने गायबाना तौर पर उसका शुक्रिया अदा किया और अंदर कमरे में आ गई, इस यकीन के साथ कि जुनैद हमेशा मेरे साथ खड़ा है। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।